Okay, in this lecture we will discuss the two-dimensional heat flow. Okay, two-dimensional heat flow. In first lecture we have to discuss the wave equation. In second lecture we have to discuss the heat equation, and in this lecture we will discuss the two-dimensional heat equation. चेंज क्या है? इन सेकंड लेक्चर वहाँ पे वन डायमेंशनल, यहाँ पे क्या है? टू डायमेंशनल. ओके, तो उसका फॉर्म क्या है? फॉर्म, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाप्लास इक्वेशन. फॉर्म डो टू यू अपॉन डो एक्स स्क्वेयर प्लस डो टू यू अपॉन dou y square is equal to 0. This is form. Okay, here u is dependent variable and x and y are independent variables. Okay, two dimensional heat flow. Now in this topic we will discuss some basic remark. तो देखो रिमार्क यहाँ पे डिपेंडेंट है पूरा. रिमार्क फर्स्ट, व्हेन x is finite and y is infinite. x is finite and y is infinite, then the solution is, तो उसका मीनिंग क्या है? x finite है and y infinite है. सपोज दिस इज योर x axis and this is your y axis. Okay, and suppose this is your rod. Suppose this is your rod. I will write here. Suppose this is your rod. यहाँ से क्या क्या हो रहा है? हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम दिस रॉड. ओके, दिस y कैसा है? y is infinity. This goes y as infinite, y as infinite, and x क्या है यहाँ पे? Suppose here x is 0 and यहाँ पे x क्या जाएगा? Suppose this is your x is L. x is L. At the time solution is x is L. At the time solution is, तो उसका मीनिंग क्या है? This is rod parallel to y axis. Okay, infinite rod पैरेलल टू y एक्सिस. ओके, एंड x की लेंथ क्या है? x फ्रॉम 0 टू L, एंड y कैसा है? इनफाइनाइट. देन द सॉल्यूशन इज, व्हेन x इज फाइनाइट एंड y इज इनफाइनाइट, देन सॉल्यूशन इज, तो उसका सॉल्यूशन क्या जाएगा? ux, y इज इक्वल टू, इन ब्रैकेट फाइनाइट क्या है? x. तो x राइट इन द वेरिएबल कॉस एंड साइन, तो क्या जाएगा? c1 cos mx प्लस c2 sin mx इंटू, इन ब्रैकेट दोनों के बीच में क्या है? इंटू c3 e रेस टू एम वाई और माइनस एम वाई प्लस c4 e रेस टू एम वाई. दिस इज योर मोस्ट जनरल सोल्यूशन. कब? इफ x इज फाइनाइट एंड y इज इनफाइनाइट, जस्ट लाइक दिस. x वेरीज फ्रॉम 0 टू L एंड y वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. एट दैट टाइम दिस इज योर सोल्यूशन. जो भी इन्फिनिटी है, राइट इन्फिनिटी इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ e. ओके, and second remark, उसका opposite, when x is infinite and y is finite, y is finite, तो वो क्या है? उसका रिवर्स. x कैसा है? इनफाइनाइट, एंड y कैसा है? फाइनाइट. ओके, तो उसकी डायग्राम क्या जाएगी? दिस इज x एंड सपोज दिस इज y. तो यहाँ पे क्या जाएगा? x कैसा है? इनफाइनाइट. दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, दिस x टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, एंड यहाँ पे y क्या जाएगा? y फ्रॉम 0 टू y इज इक्वल टू L. दिस इज योर रॉड पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, पैरेलल टू x एक्सिस. दिस इज इनफाइनाइट अप टू इन्फिनिटी, एंड y स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू L. ओके, एट दैट टाइम सोल्यूशन इज, तो उसका सोल्यूशन क्या जाएगा? ux, y इज इक्वल टू, अभी हाँ यहाँ फाइनाइट क्या है? y. तो y किस में जाएगा? कॉस एंड साइन. तो क्या जाएगा? c1 cos my प्लस c2 sin my, बिकॉज y इज फाइनाइट, इंटू c3 e रेस टू माइनस mx प्लस c4 e रेस टू mx, बिकॉज x इज इनफाइनाइट. Okay, if question belongs to first category, at that time this is your solution, and question belongs to second category, this is your solution. There are two types. First x finite, y infinite, and second x infinite, y finite. Okay, from this diagram आपको understand होगा.
Okay, there are two types of problems of two-dimensional heat flow. This is equation dou 2u upon dou x square plus dou 2u upon dou y square is equal to 0. This equation also known as Laplace equation. Okay, and these are the solution. Okay, now we will discuss the example on that topic. Okay, example of that topic. The example first. First, solve the equation dou 2u upon dou x square plus dou 2u upon dou y square is equal to 0 with conditions first u is equal to 0 when y is infinity. First condition, u is equal to 0 when y tends to infinity. Second condition, u is equal to 0 when x is equal to 0 for all values of y. X is equal to 0 for all the values of y. Then third condition, u is equal to 0 when x is equal to 1 for all the values of y. And last condition, condition fourth, u is equal to x in bracket 1 minus x in bracket 1 minus x when y is equal to 0 and 0 less than x less than 1. Okay, this is your question. तो देखो क्वेश्चन, solve the equation dou 2u upon dou x square plus dou 2u upon dou y square is equal to 0 with condition. These are the condition. Okay, these are the condition. Now this is your two-dimensional heat equation, or this is a Laplace equation, correct? This does not belongs to heat or does not belongs to wave equation. Okay, so this is two-dimensional heat equation. Here u is dependent variable and x and y are independent variables. Okay, now we have to find solution. Here y is infinite. Okay, remark number first, y is infinite. At that time we have to use this solution. Okay, now we have to find solution. In answer I will write here answer directly. तो क्या जाएगा देखो आंसर में, आंसर the given equation dou 2u upon dou x square plus dou 2u upon dou y square is equal to 0. Okay, subjected to this condition. With conditions, these are your given condition. Okay, this is your first condition. आपको लिखना है पेपर में, u is equal to 0 when y tends to infinity. Second condition, u is equal to 0 when x is equal to 0 for all the values of y. u is equal to 0 when x is equal to 1 for all the values of y, and u is equal to x in bracket 1 minus x when y is 0 for all 0 less than x less than 1. Okay, now first write the given equation, then write conditions, then the most general solution. The most general solution, तो क्या जाएगा मोस्ट जनरल सोल्यूशन? दिस इज रिमार्क फर्स्ट और सेकंड. दिस इज रिमार्क फर्स्ट, y टेंस टू इन्फिनिटी. यहाँ पे y कैसे दिया है? इन्फिनिटी. y टेंस टू इन्फिनिटी. तो क्या जाएगा मोस्ट जनरल सोल्यूशन? u x, y. हियर u इज डिपेंडेंट एंड x एंड y आर इंडिपेंडेंट. तो क्या जाएगा? c1 फाइनाइट कौन सा है? x. c1 cos mx प्लस c2 sin mx into c3 e raised to minus my
plus C4 e raised to my. Suppose this is your equation first. This is your most general solution. Okay. Now apply condition first. हाँ अभी क्या है y infinity, तो apply condition first to equation first. तो क्या था देखो, apply condition first to equation first. Okay, apply condition first to equation first. तो क्या जाएगा, जस्ट लाइक हिट एंड वेव इक्वेशन, ये हमने सॉल्व किया है पहले भी. तो क्या करना है, पुट y टेंस टू इन्फिनिटी, u क्या मिलता है 0. ओके, तो u x, y इज इन्फिनिटी, करेक्ट, इज इक्वल टू, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज वी हैव टू चेंज इन y, वी हैव टू रिप्लेस y एज इन्फिनिटी, करेक्ट. तो दिस ब्रैकेट एज इट इज c1 cos mx प्लस c2 sin mx. ओके, इनटू, तो यहाँ पे क्या जाएगा y टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे y टेंस टू इन्फिनिटी किया तो e रेस टू क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी, e रेस टू माइनस इन्फिनिटी इज 0, 0 इंटू c3 क्या मिलेगा 0 प्लस यहाँ पे e का पावर इन्फिनिटी, दिस गोज टू इन्फिनिटी. ओके, e का पावर इन्फिनिटी, दिस गोज टू इन्फिनिटी. ओके, e का पावर इन्फिनिटी, दिस गोज टू इन्फिनिटी. तो यहाँ पे क्या बचेगा c4 इंटू इन्फिनिटी, c4 इंटू इन्फिनिटी वी गेट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा c4. ओके, c4, हाँ देखो यहाँ पे दिस इज c3 e रेस टू माइनस my, पुट y एज इन्फिनिटी, पुट y एज इन्फिनिटी. तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा c3 e रेस टू माइनस इन्फिनिटी, बट e रेस टू माइनस इन्फिनिटी इज 0, 0 इंटू c3 क्या मिलेगा 0. एंड यहाँ पे क्या बचेगा e का पावर इन्फिनिटी, e का पावर इन्फिनिटी क्या जाएगा इन्फिनिटी. तो यहाँ पे क्या जाएगा c4 इंटू इन्फिनिटी, ऐसा लिखा तो भी चलेगा c4 इंटू इन्फिनिटी. अभी देखो बट उसकी वैल्यू क्या है, u की वैल्यू व्हेन y टेंड्स टू इन्फिनिटी u इज 0. तो यहाँ पे क्या है 0 इज इक्वल टू, दिस इज सेम ब्रैकेट बिकॉज वी हैव टू नो चेंज इन x, दिस इज c1 cos mx प्लस c2 sin mx. एंड यहाँ पे क्या बचेगा 0 प्लस दिस, तो यहाँ पे क्या बचेगा c4 इंटू इन्फिनिटी. अभी देखो c4 इंटू इन्फिनिटी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, उसका कोई भी रिलेशन नहीं है बिकॉज वी हैव टू चेंज इन y. तो यहाँ पे c4 इंटू इन्फिनिटी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, c4 इंटू इन्फिनिटी, दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0. तो डेफिनेटली c4 क्या रहेगा 0. दिस इंप्लाइज c4 इज 0, दिस इंप्लाइज c4 इज इक्वल टू 0. नाउ पुट c4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 बिकम्स, ओके ये सब हमने हिट एंड वेव इक्वेशन में देखा है. तो क्या जाएगा, पुट c4 इज इक्वल टू 0, वी गेट ux, y इज इक्वल टू c1 cos mx इन ब्रैकेट c1 cos mx प्लस c2 sin mx इंटू क्या बचेगा c3 e रेस टू माइनस my, c3 e का पावर माइनस my. सपोज दिस इज योर इक्वेशन सेकंड. नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन सेकंड एंड सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंडीशन. दिस इज जस्ट लाइक हीट इक्वेशन, जो हमने देखा है वही है. देखो कंडीशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दिस इज आल्सो सेम सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन, दैट इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन. वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग द सेम. नाउ अप्लाई कंडीशन 2 इक्वेशन सेकंड, अप्लाई कंडीशन 2, अप्लाई कंडीशन 2 टू इक्वेशन सेकंड. नाउ देखो हाँ इन इक्वेशन 2, हाँ इन कंडीशन 2 पुट x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x इज 0, तो क्या जाएगा u 0, y इज इक्वल टू इन ब्रैकेट cos 0, cos 0 क्या आता है 1, तो क्या बचेगा वहाँ पे c1 प्लस यहाँ पे sin 0 इज 0, तो क्या बचेगा 0 इंटू c3 e रेस टू माइनस my. sin 0 क्या जाएगा 0 एंड cos 0 1. नाउ द वैल्यू ऑफ u इज 0 व्हेन x इज 0, x 0 पुट किया तब u की वैल्यू क्या आती है 0. तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू c1 इंटू c3 e रेस टू माइनस my. नाउ ऑब्जर्व दिस, हियर वी हैव टू चेंज इन x, नो चेंज इन y. तो उसमें कोई चेंज है क्या, नहीं. फिर दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0, तो डेफिनेटली c1 क्या बचेगा 0, इंप्लाइज c1 इज इक्वल टू 0, जस्ट लाइक हीट इक्वेशन. तो
Put C1 is equal to 0 in equation 2. Therefore, equation 2 becomes, तो क्या जाएगा इक्वेशन 2? ux, y is equal to C1 0 गया, क्या जाएगा C2 into C3, C2 into C3, suppose this is your C5 into sin mx. C2 is constant, C3 is constant, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सपोज C5 into e raised to minus my. Suppose this is your equation 3rd. Okay, now condition first हो गया, condition second हो गया. Now we have to use condition 3rd to equation 3rd. Okay, तो apply condition 3rd, apply condition 3rd to equation 3, to equation 3. तो क्या मिलेगा दी, देखो कंडीशन 3rd में क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 वी गेट u0. पुट वैल्यू ऑफ x इज 1. अभी x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो क्या जाएगा u 1, y C5, यहाँ पे क्या जाएगा साइन m x इज 1 e का पावर माइनस my. ओके, बट इफ वी रिप्लेस x एज 1 द वैल्यू ऑफ u इज 0. तो u की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0 इज इक्वल टू C5 sin m e का पावर माइनस my. सेम हियर वी हैव टू चेंज इन y, सॉरी x, नो चेंज इन y. तो देखो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या जाएगा 0. e raised to minus my इज नॉट 0 बिकॉज वी हैव टू चेंज इन x. तो देखो C5 इज आइदर C5 इज 0 और sin m इज 0. ओके, सपोज C5 इज 0, सपोज हमने C5 0 लिया तो होल इक्वेशन क्या जाएगा 0. For this purpose C5 is not equal to 0, तो 0 क्या जाएगा sin m. This implies C5 not is equal to 0 implies sin m is equal to 0 and sin theta is equal to 0 कब, sin theta is equal to 0 कब, theta is equal to n pi. तो सेम आएगा, this implies m is equal to n pi for all n is equal to 0, 1, 2 dot 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 dot. Okay, here C5 is not equal to 0 because for non-zero solution. तो implies sin m क्या जाएगा 0 and sin theta 0 कब, theta is n pi, theta is n pi, we get this. Now equation 3 becomes therefore equation 3 becomes, तो equation 3 क्या जाएगा देखो, for every value of n if we put n is equal to 0 we get value of m. If we put n is equal to 1 we get value of m. If we put n is equal to 2 we get value of m. Okay, so by using the principle of superposition we have to write here summation. Okay, just like heat and wave. Okay, now I will drop this, तो क्या जाएगा वहां पे, for every value of n we get one value of m by using superposition. तो क्या जाएगा इक्वेशन 3 becomes, क्या जाएगा इक्वेशन 3, ux, y is equal to summation this m depending upon value of n. करेक्ट, n कहाँ से स्टार्ट है, n starting from 0 and goes to infinity. This C5 converted into bn साइन m की वैल्यू क्या है, m is n pi, n pi x e का पावर m की वैल्यू माइनस n pi y. सपोज दिस इज योर इक्वेशन 4th. ओके, पुट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n pi, बट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m वी गेट वैल्यू ऑफ n. फॉर n इज इक्वल टू 0 वी गेट 1m, फॉर n इज इक्वल टू 1 वी गेट अनदर m. तो वी हैव टू ऐड ऑल दी सॉल्यूशंस, दैट इज the principle of superposition, and this C5 goes to bn. Now in equation 4th, now here is only one constant, that is bn. We have to find value of constant. Okay, then apply condition last, third हो गई, then apply condition 4th, apply condition 4th to equation 4. टू इक्वेशन 4. ओके, तो क्या जाएगा, 4th में क्या क्या दिया है, पुट y इज इक्वल टू 0. तो क्या जाएगा, पुट y इज इक्वल टू 0 ux, 0 इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी bn sin n pi x इंटू
y की वैल्यू क्या है 0, तो e रेज टू 0, e का पावर क्या मिलेगा 0 एंड e का 0 इज 1. ओके, वी गेट दिस, e का 0 इज 1. ओके, नाउ बाय यूजिंग फोरियर सीरीज वी हैव टू सॉल्व दिस. ये देखा है हमने सब. तो u x, 0 उसकी वैल्यू क्या आती है, फिर y 0 उसकी वैल्यू क्या है, x इन ब्रैकेट 1 माइनस x इज इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 to infinity bn sin n pi x. Okay, then by using Fourier sine transform, by Fourier sine transform, sine transform. Okay, by Fourier sine transform, I will drop this side, I will drop this side. तो क्या मिलेगा बाय यूजिंग फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, दिस समेशन गोज टू इंटीग्रेशन. करेक्ट, समेशन गोज टू इंटीग्रेशन. तो क्या जाएगा, इंटरचेंज दिस टू bn एंड दिस इंटरचेंज कर दो. तो क्या जाएगा, bn इज इक्वल टू 2 अपॉन लेंथ. लेंथ क्या है उसकी, x कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, तो उसकी लेंथ क्या जाएगी 1, 2 अपॉन 1 इंटीग्रेशन 0 टू लेंथ इज 1. देन हाँ, दिस गोज टू दिस साइड, bn इंटरचेंज किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्या जाएगा, x इन ब्रैकेट 1 माइनस x इंटू साइन n पाई x इंटू साइन n पाई x एज इट इज. ओके, इंटरचेंज दिस टू समेशन. हाँ, यहाँ पे समेशन गोज टू इंटीग्रेशन, bn इज इक्वल टू 2 बाय 1 0 टू 1 x इन ब्रैकेट 1 माइनस x इंटू साइन n पाई x इंटू साइन n पाई x इंटू dx. यहाँ पे इंटीग्रेशन है. करेक्ट. देन यूज यूवी रूल. यूवी रूल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी रूल आई विल राइट हियर, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डिफरेंशिएशन v का ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस प्लस डॉट डॉट. करेक्ट, u इंटू वी रूल, ये हमने बहुत बार देखा है. देन क्या जाएगा वो, दिस इज 2 एज इट इज, दिस इज योर u एज इट इज. u क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर दो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. करेक्ट, u क्या है x माइनस x स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई कर दो. देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन n पाई x, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है माइनस कॉस, आई विल राइट इन ब्रैकेट माइनस कॉस n पाई x विद रिस्पेक्ट टू क्या है dx. तो n पाई क्या जाएगा डिवाइड में n पाई. ओके, n पाई. ओके, माइनस दिस 2 टेक आउटसाइड, ये आउटसाइड में भी लिख दिया 2 तो भी चलेगा. आई विल राइट दिस सच टाइप ऑफ ब्रैकेट. देन डेरिवेटिव ऑफ दिस x माइनस x स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. ओके, यहाँ पे जो टर्म है दिस टर्म. देन cos का इंटीग्रेशन क्या आता है साइन, दिस माइनस आई विल राइट हियर माइनस एज इट इज cos n पाई x डिवाइड बाई n स्क्वायर पाई स्क्वायर. ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 माइनस 2x उसका डिफरेंशिएशन, 1 माइनस 2x उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1 का 0, तो क्या बचेगा माइनस 2 इंटू ये कॉस का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे क्या जाएगा साइन. ओके, देन साइन का इंटीग्रेशन वो क्या जाएगा माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या जाएगा कॉस, साइन कॉस n पाई x डिवाइड बाई n क्यूब पाई क्यूब. ओके, अपर एंड लोअर लिमिट 0 to 1. देन माइनस 2 का नेक्स्ट क्या जाएगा 0, वो लिखने की जरूरी नहीं. क्या है देखो, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन उसका डेरिवेटिव, देन इनटू उसका इंटीग्रेशन कॉस का क्या जाएगा साइन, प्लस उसका डिफरेंशिएशन उसका इंटीग्रेशन. ओके, वी गेट दिस. नाउ पुट अपर एंड लोअर लिमिट. तो देखो bn इज इक्वल टू 2, पुट अपर लिमिट x इज इक्वल टू 1 पुट किया x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, 1 माइनस 1 0. देन यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 साइन n पाई 0, तो क्या बचेगा लास्ट टर्म, दिस इज माइनस 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब. एंड यहाँ पे क्या बचेगा x1 cos n पाई. ओके, माइनस लोअर लिमिट.
पुट x इज इक्वल टू 0, दिस इज 0, 0 आ जाएगा, यहाँ पे साइन 0 0 आ जाएगा इंटू दिस 0, तो क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस, cos 0 इज 1, तो क्या बचेगा 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब. ओके, नाउ टेक 2 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब आउटसाइड, 2 इंटू 2 क्या जाएगा 4 अपॉन n क्यूब पाई क्यूब, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस cos n पाई इज माइनस 1 रेज टू n. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड bn. तो bn इज इक्वल टू, सपोज n इज इवन नंबर, n इज इवन, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, n इज इवन नंबर, तो माइनस 1 का पावर क्या जाएगा प्लस 1, देन 1 माइनस 1 0, तो उसका आंसर क्या मिलेगा 0. दिस इज 0 कब, if n इज इवन. इफ यू पुट n इज ऑड नंबर, तो माइनस 1 का ऑड, वो क्या जाएगा माइनस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 1 प्लस 1 2, एंड दिस इज 8 टाइम्स n क्यूब अपॉन पाई क्यूब कब n is odd. Okay, n is odd. Now this is your value of bn. bn is 8 upon n cube pi cube. Now put this value in equation 4th. Put this value in equation 4th. We get final answer. So I will write here. After this step, equation 4 becomes. Equation 4 becomes. This is your equation 4, ux comma y is equal to, this is your equation 4. Now put value of bn here, we get ux comma y is equal to summation n from 0 to infinity, value of bn 8 upon n cube pi cube sin n pi x e ka power minus n pi y. This is your solution. For all n is odd. For all n is odd number. Okay, this is your final answer. This is all about two-dimensional heat equation or the Lagrange's heat equation. This is your solution, and this is all about the heat equation.